ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਔਰ ਧਾਕੜ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੂਬਰੂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2020 ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1000 ਬੈਸਟ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਪਾर्ट ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਪਾर्ट ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस जिन्ने भी करवाए जा रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.giljmentortest.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 550 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜੀ ਹੋ ਬਟ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मंजर जमीन से फल निकलेगा। कि बंजर जमीन से फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी वल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, कि गर्ल के समंदर में भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज समा थमा थमा सा चल निकलेगा। कल तेरा सूरज जरूर चमकेगा। दोस्तों इस मोटिवेशनल पोएम ਦੇ ਨਾਲ मैं ਅੱਜ ਦੀ सीरीज ਨੂੰ शुरू ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ट्रिकी जीके रीजनिंग दी क्लासेस आने वाले सारे पेपरों के संबंध च दोस्तों ये जो खूबसूरत सीरीज़ है ये पंजाब कैरियर अड्डा ते मिलेगी। हुणे जाके चैनल सबसक्राइब करो प्लीज़। अज दी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते दे रखा थोनू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही वधिया क्वेश्चन ने। डैश 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 analogs to a relay race where the crop hands over land to ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰੌਪ ਇਨ ਕੁਇਕ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਜ਼ ਐਨਾਲੌਗਸ ਟੂ ਏ ਰੀਲੇ ਰੇਸ, ਰੀਲੇ ਰੇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈਂਡਸ ओवरलैंड टू द नैक्सट क्रॉप इन क्विक सैशन। मतलब कि बहरहाल अपन एक ਵੱਖਰੇ तरीके ਨਾਲ समझ सकते हैं कि ਰੀਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ है ना यह ग्रोइंग मतलब आप कह सकते हैं कि 2 और 2 तो ज़्यादा भी क्रॉप्स सेम फील्ड सेम सीजन इन द प्लांटिंग। जिमें कि आप एग्जाम्पल के तौर पर गल करिए कि एक समय के अंदर 2 तो ज़्यादा फसलों का उगना, 2 तो ज़्यादा फसलों की ग्रो होना, दैट इज़ कोल्ड रीले क्रॉपिंग। ठीक है, हुण आप समझ सकते हैं सेम फील्ड विद द प्लांटिंग ऑफ द सैकेंड क्रॉप। अगर पहली क्रॉप तो बाद दूजी क्रॉप आप हैंड टू हैंड बीज रहे हैं, तुसी अक्सर बार देखा होगा जो हरा चारा आप पट्ठे बीजते हैं। ठीक है, फटाफट आप की करते हैं कि
ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਰੀਲੇ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਬੀਅਰ देयर ਫਰੂਟ ਇਨ ਪੋड्स। ठीक है, पोड्स किनू कहते हैं? सब तो पहला तो जब देखो कि किस टाइप का प्लांट्स है जिहड़ा कि बीयर देयर फ्रूट इन पोड्स है। तो 5 ऑप्शन दिते गए ने, तुसी दसना है कि दा सही आंसर की होएगा। याद रखना है कि लेगूम्स बिल्कुल राइट आंसर होएगा, लेगूम्स बिल्कुल राइट आंसर होएगा। किस प्रकार के प्लांट ने? पोड मतलब फलियां हो गई बिल्कुल, जो आप कह सकते हैं कि जिहड़े कि उन्होंने फ्रूट ने बिल्कुल उन्होंने फली दे नाल चिपे हुंदे है। तो लैगून भी एक सब दी लैग्यूम आप कह दें कि फलियां होंदियां। ठीक है, जिवें एग्जाम्पल सब देखते हो मटर। ठीक है, मटर है ना, मटर देखिए आप पी हुंदा जिहड़ा कि वो जिद्दां कि जड़ तो ही उहदे फलियां शुरू हो जांदियां, बी नाल लगे हुंदे ने उहदे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल साडे लई बेस्ट होएगा समझण लई। ठीक है, दूजे तरीके की आपां गल करिए तो समझ सकते इस तो एक होर एग्जाम्पल दे नाल बाय द वे, जिवें कि ਆਪਾਂ समझ सकते हैं कि लिग्यूम एक प्लांट्स है ना, ये बीयर इन्हां दे जिहड़े फ्रूट्स ने पोड विच आर द चेजिंग ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕ बल्कि कैसिंग द टू हैवल्स और हिंग्स ਹੁੰਦੇ ਆ। जे ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਣ ਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, अरहर ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਲੋ ਐਂਡ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਲੈਗਿਊਮ ਫਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਾਈਬਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगला क्वेश्चन है इन एग्रीकल्चर CWT का मतलब की है? एग्रीकल्चर दे विच आपां CWT का मतलब दसना है की होएगा। दोस्तों CWT का मतलब हुंदा है, तुसी दसना है कमेंट बॉक्स। पहली गल मैनूं दसो यार की हो सकता है। जस्ट ए सिंपल जा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत है। जल्दी जल्दी दसो कि क्रॉप वेटेज होएगा, या क्रॉप वेजस ट्रेड होएगा, या सेंट्रल वेजस होएगा, या आप कह सकते कि कैंटूम वेट होएगा। तो इसका सही आंसर की है? तो कैंटूम वेट बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है, कैंटूम वेट होएगा। कैंटूम वेट कहते किनू है? ठीक है, ਇਹਦਾ ਹੁਣ आंसर क्विकली बन जाता है कि आप ऑप्शन नंबर चौथा कहता है कैंटूम वेट होएगा। बट एक देखो कैंटूम वेट नूं सीधा समझ लो कि आप 100 किलो का वजन कहने हैं, वो भी कैंटूम वेट बोलिया जाता है, जो कि बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि तय तक जितों आप मेजरमेंट अक्सर बार लेने, या तुसीं होर समझ सकते क्वांटल। ठीक है, जिन्होंने आप इंग्लिश समझते क्विंटल, QUINTAL क्विंटल। ठीक है, और बेसिकली की है कि जो US कस्टमरी यूनिट है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ weight ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਅ ਵੈਲਿਊ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਦਾ ਡਿਫਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਟੂਮ weight ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। याद रखना एग्जाम च कोई ज़्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सैशन चंगा लग रहा है, सोहना लग रहा है, शेयर कर दो। शेयर करने च बहुत ज़्यादा कंजूसी है। इन्नी कंजूसी करके की करोगे? की करोगे दसो, तुसी की करोगे? इन्नी कंजूसी करके की करोगे? दोस्तों तुसी रियली दिल नाल हर एक सैशन नूं शेयर कर दो ना, हज़ारां बच्चों तक अज ही पहुँच सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ते ये तो है नहीं भी सारा दिन आप सही जगह ते नहीं पढ़ते हो। if you are getting something else from here, then you should support please this channel, support please this channel, and share with your friends and share with your colleagues in Instagram, Telegram, WhatsApp, Messenger, जिथे भी तुसी यूज करते हो फैला दिया करो यार, धूड़ा ठा दिया करो इसे करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज ए लेग्यूम रूट, मैं कह सकते हैं कि न्यूडल बैक्टीरिया। दोस्तों यह क्वेश्चन 2-3 बार होर भी एग्जाम च पूछा गया है, तुसी बहुत ही सिंपल तरीके नाल आंसर दे सकते हो। आंसर की हो सकता है? क्विकली कमेंट्स आंसर देने की कोशिश करो। वी हैव ए 5 ऑप्शन हेयर, इसका करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन की होएगा। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन च पूछा कि किहड़ा बैक्टीरिया है कि जिहड़ा लेग्यूम रूट नूडल्स बैक्टीरिया है उसनूं आपां की कहने, इन्हां चों किहड़ा बैक्टीरिया है। चलिए वी हैव ए 5 ऑप्शन, पंजवां नन ऑफ दीज है। बिल्कुल की आंसर होएगा? डेफिनेशन है, याद रख लियो की होएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, राइजोबिया, राइजोबिया याद रखना है। राइजोबिया ऑप्शन नंबर 3 होएगा। राइजोबिया बैक्टीरिया है ना, ए फिक्स नाइट्रोजन आफ्टर बिकमिंग द एस्टैब्लिशमेंट इनसाइड द रूट नूडल्स ऑफ ल्यूगम्स। ठीक है, तो इसनूं याद रखना है
कि ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਫਟਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਡਲਸ ਰੂਟ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਿਗੂਮਸ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 1 ਐਨੀਮਲ ਯੂਨਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼। 1 ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल AU मतलब एनीमल यूनिट बारे पूछा जा रहा है। बेसिकली बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। चलिए क्विकली मैं तुहानूं दसांगा इहदा आंसर की होएगा। ऑप्शन नंबर तीजा होएगा 1000 जो अपने कोले LB है उहदे बराबर होएगा। वाई कैन बी से दैट, देखो एक AU है ना, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है कादे वास्ते, एनीमल वास्ते। कैलकुलेटिंग कर दी है ये कि रिलेटिव ग्रेजिंग इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब कि जो पशु है हरा चारा करते हैं। 1 एनीमल यूनिट डिफाइन की गई है 1000 LB, या मैं कह सकता कि लगभग इनू आप आम पेंडू भाषा समझिए तो 4.5 क्विंटल तुसी आम भाषा च समझ सकते हो, ठीक है। 450 किलो, ठीक है। बीफ काऊ या आप विदाउट ए नर्सिंग काफ हो गया, ए डेली कैरी ड्राई मैटर्स फॉरेस्ट लगभग आप रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। मैक्सीमम टू मैक्सीमम अगर आप डेली ड्राई मैटर की गल करते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट 12 किलो होंदा है, जिन्होंने आप 26 IB दे विच कंसीडर करते हैं। तो तुहानूं एग्जाम च यही चीज़ां पूछियां जाणगियां तो तुसीं यही चीज़ दसनी है। बहुत ही सिंपल जा क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते की जानकारी पूछी गई है। डैश 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 इज द फॉलोइंग अंडर ए सॉइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो तुसी दसना है, तुहाडे कोल 5 ऑप्शंस ने, इहदा सही आंसर की होएगा दोस्तों। इहदा आंसर होएगा ग्रीन, किहड़ा गल होएगा, ग्रीन मैन्योरिंग, बिल्कुल राइट आंसर है ग्रीन मैन्योरिंग। ऑप्शन नंबर चौथा राइट होएगा। ग्रीन मैन्योरिंग की है, ग्रीन मैन्योरिंग एक मैं कह सकता कि ग्रोविंग इन द फील्ड प्लांट्स यूजली बिलोंगिंग टू द, जिमें आप कह सकते हैं ना कि लेग्यूमिन्स हो सकते जिमें फलीदार कुछ भी उगरते हैं उन्होंने ये फैमिली स्टॉक च बनते। जिमें अक्सर बार तुसीं खब्बल घाह देखा होएगा, इदां दे घाह हुंदा है कि जिहड़ियां फली बनती उत्थों ही जड़ शुरू हो जाती है, फिर जड़ शुरू हो जाती, फली बनती है। इनकॉर्पोरेटिंग मैं कह सकता कि सॉइल आफ्टर द इन सफिशेंट ग्रोथ है तो प्लांट्स दैट आर ग्रोन और ग्रीन मैन्योर नोन एज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहा जाता है इन्हों, ग्रीन मैन्योर क्रॉप कहा जाता है इन्हों, जेड़े कि एक जगह तो फली जिथों लगती है, जिथों ओदी जड़ शुरू होंदी है उत्थों गांह दी गांह शुरू होंदा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेने हैं। टू रेजिंग ए क्रॉप दैट रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट, या आप कह सकते हैं कि स्टॉक्स आफ्टर ए हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप इज नोन एज। तो दोस्तों सिंपल जा क्वेश्चन है, सानू बहुत अच्छे तरीके नाल पता है, इसनूं कहंदे हैं रिट्यूनिंग कहंदे हैं। मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकिया रिट्यूनिंग क्या जाता है, की कहंदे हैं रिट्यूनिंग। रिट्यूनिंग एक हार्वेस्टिंग मैं कह सकदा कि क्रॉप है भी जिमें कि लिव्स दा रूट, जिमें कि आपां अक्सर बार तुसीं देखिया होगा बाय द वे जदों सरों है, मस्टर्ड है या कणक है या झोना है, तुहानूं पता है जदों ये पक जाता है आप इहदियां थल्ले रूट छड्ड दिंदे, उत्तों कट लेने, उत्थों ये ग्रो हरा नहीं होएगा। यही सेम चीज़ अगर आप जो ग्रीन नूं कट्टांगे, चाहे वो जो जौ आ, चाहे वो जवी है, चाहे जवार है, चाहे आप अक्सर बार इन्हां चीज़ों को कट्टते हैं तो थल्लों फिर वह की हो जाता है, रीबूटिंग शुरू हो जाती है वही, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रिट्यूनिंग इज ए मैथड ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप विद द लीव्स द रूट एंड ए लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट अनकट गिव द रिटर्न टू द, जिवें कि स्टबल क्रॉप होंदी है ना, उसनूं आप कह सकते हैं, ठीक है। मेन बैनीफिट इहदा की हुंदा है कि जदों आप कट्टांगे पूरा ठेठ आप शुरू किया, जो वापस आवांगे तो यह वापस ही हरा चारा पट्ठे दुबारा तो ये शुरू हो जाएंगे अर्लीयर सीजन के मुताबिक, अर्लीयर पोजीशन के मुताबिक, ठीक है। तो रिट्यूनिंग तुहानूं बेहतर तरीके नाल समझ आ गया होएगा। चलिए अगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं पूछा जा रहा है, द कोका प्लांट्स वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम विच कंट्री, केड़ी कंट्री तो इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों इको आंसर याद रख लो, ये हैगा वैस्ट इंडीज़ तो, ठीक है। कित्थों ने, वैस्ट इंडीज़ तो। लगभग 1843 कोकाज प्लांट इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम वैस्ट इंडीज़, यानी वैस्ट इंडीज़ तो इन इंडिया दे विच कीते गए सीगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन 1820
1820 एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज ओपन इन विच स्टेट, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨੋਟ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ सोसाइटी। तो दोस्तों ਇਹਦਾ सही आंसर की होएगा? दोस्तों याद रखना है कि ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर होएगा वेस्ट बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कदों गल है इन 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਵੰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 1820 ਕੈਲਕਟਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ, अंत में तुहाडे नाल सांझी करांगा मैं पंजाब दे एग्रीकल्चर नूं लैके भी इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। फ्लोरीकल्चर बारे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सवाल नूं जफ्फा पा लो फटाफट सारे स्टूडेंट्स की, फटाफट दसो मैनूं की होएगा। फ्लोरीकल्चर इज ए रिलेटेड विद, यानी फ्लोरीकल्चर किस दे संबंध च है, तुसीं इहदा आंसर मैनूं दे सकदे हो। तो दोस्तों इहदा आंसर होएगा फ्लावर्स, बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लावर की खेती नूं यानी फुल्लां की खेती नूं फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, तुसीं याद रखना है। हाँ, फ्लोरीकल्चर या फ्लावर फार्मिंग भी कह सकते हैं आप, ये बल्कि हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग या आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स कह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया नूं की किया जाता वा फ्लावर होएगा, या आप कह सकते हैं एक आधे वास्ते होंगे फ्लोरिस्ट्री या आप कंपैरिजनिंग या फ्लोरी इंडस्ट्री की प्रक्रिया भी ये आ जाती है, ठीक है। बाय द वे तुसीं याद रखना कि फ्लोरीकल्चर फॉर फ्लावर्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का यूनिट पूछा जा रहा है। तो सॉइल इरोजन का यूनिट होंगे ना, याद रख लो यार, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, किलोग्राम, ठीक है, स्क्वायर मीटर होएगा थोड़ा, ऑप्शन नंबर पहला होएगा। क्योंकि सॉइल इरोजन मेजर किया जाता ना, यह मास यूनिट के मेजर किया जाता है, काहदे च? मास यूनिट पर एरिया, ठीक है, या आप कह सकते हैं टन, हैक्टर या किलोग्राम। देखो एग्जाम च की पूछ सकता थोनों, एग्जाम च पूछ सकता है याद रखना मास यूनिट एरिया दिता जाएगा, पहली गल, ठीक है। जे उन्हें टन च देता टन, ये हैक्टर दे विच आएगा। जे दोस्तों उसने तुहानू देता वा किलोग्राम, तो यह आएगा मीटर स्क्वायर आएगा, ये याद रखना, ठीक है, स्क्वायर मीटर कह सकते आप। चलिए, हाँ, थोनू इन्नी मेहनत नाल शिद्दत नाल पढ़ा रहे हैं, जिस करके सेहत खुद टीचरां दी खराब हो रही है ठंड च, है ना। तो तुसी थोड़ी जी कदर करया करो यार, चाह चू का ख्याल भी बिल्कुल पुछदे नहीं तुसी, तो जमा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम यूज टू द डिटरमाइन पूछा जा रहा है, इहदा ऑप्शन दसो फटाफट की होएगा। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ ਬੈਸਟ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈ, 40 ਮੌਕ ਟੈਸਟ, 90 ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 90 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ एग्जाम ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश 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 इज ए पीस ऑफ स्लॉप्ड प्लेन दैट हैज बीन कट इनटू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिवली रिसीडिंग फ्लैट सरफेसेस। तो ਇਹਦਾ सही आंसर की होएगा। और खास तौर पर स्टूडेंट्स ਨੂੰ मैं बार बार कहांगा वेट ना करो, अपनी तैयारी जबरदस्त रखो तुसी, ठीक है। तो आंसर होएगा ਇਹਦਾ ट्रेसिंग, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। एग्रीकल्चर के ट्रेसिंग इज पीस ऑफ ए स्लॉप्ड प्लान कवांगे आप। इट हैज़ बीन ए कट इनटू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिवली रिसीडिंग द फ्लैट सरफेस ऑफ परफॉर्म, ठीक है। रिसेंबल स्टैप होंदा आ, परपज ऑफ मोर इफेक्टिव फार्मिंग होंदा आ, जिमें कि आप कह सकते हैं कि बल्कि लैंडस्केपिंग हो गया, या ये पूरी प्रक्रिया की किया जाता, ट्रेसिंग किया जाता है, ठीक है। ट्रेसिंग समझ के होंगे। चलिए मैनू कमेंट करके दसो कि सारे ट्रेसिंग समझ आया कि नहीं आया। ये पूरे क्वेश्चन दे थोनों पीडीएफ्स भी दिते जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर, ठीक है। देखो ट्रेस करने की प्रक्रिया समझ आया कि नहीं आया थोनों। ट्रेस करना किसी भी जो भी आप क्रॉप करते हैं पूरा उन्होंने लामबद्ध तरीके नाल बीजना, जिमें कि चाहे वट्टा बना के बीजना, चाहे उन्होंने क्यारियां बना के बीजना,
ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਆਰੇ ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ, ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੇਸ ਕਲਟੀਵੇਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੋਵਿੰਗ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਿਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲੋਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਅਗਰ 165 ਸਕੁਆਇਰ ਫਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਗਾ ਕਿੱਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਰੇਸਿੰਗ। ਚਲਿਏ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਵਾਟਰ ਦੈਟ ਹੈਲਡ ਇਟ ਟਾਈਟਲੀ on the surface of a soil colloidal particle is known as particle known as ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਗਰੋ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਹਾਈਗਰੋਕॉप्स ਵਾਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ਚੌਥਾ ਹੋਏਗਾ। तो दोस्तों ਇਹਦਾ आंसर है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं सारे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू सप्लाई हीट फॉर द इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन की प्रक्रिया समझ सब नूं पता है, जिन्हों आपां की कह दिंदे आ, इवापोरेशन नूं पानी की भाफ बन के उपर जाना। ठीक है, तो ये सप्लाई हीट फॉर इवापोरेशन वास्ते है, तो यदा जो सही आंसर होएगा की होएगा, सिंपल जा क्वेश्चन है, ओसिस इफेक्ट होएगा। ठीक है, ओसिस भी आपां पानी नूं कहने हैं। ओसिस इफेक्ट इज द एक्सचेंज ऑफ हीट वेयर बाई, तो तुसी याद रखना है ओसिस इफेक्ट बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेने आपां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 इज द स्लो फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू द समथिंग। तो यदा सही आंसर की होएगा, सीपेज बिल्कुल राइट आंसर है, सीपेज इज द राइट आंसर है। सीपेज नोट रखो, सीपेज इज द वाटर स्क्रैप्ड द थ्रू द सॉइल अंडर ए ग्रेविटेशन फोर्सेस नूं बिल्कुल की कहने आपां, सीपेज कहने हैं। ठीक है, हुण मैं तुहानूं 3 क्वेश्चन देवांगा, इन्हां दे आंसर्स तुसीं दसने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल मिनी किट टेस्टिंग प्रोग्राम ऑन ए फॉडर क्रॉपिंग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, इहदा आंसर तुसीं दसना है, मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन ऑब्जेक्टिव है जो स्कीम का है, इसका मतलब है कि पॉपुलराइज द लेटेस्ट इंप्रूवमेंट फॉडर वैरायटी जिन्नियां भी हो सकती हैं किसानों वास्ते, फॉडर सीड प्रोडक्शन करना, और सही जगह पर उन्होंने सही सीजन के मुताबिक डिमांड के मुताबिक सप्लाई करना फॉडर की। इंप्लीमेंटेशन जो एजेंसी है, इस एजेंसी का तुसीं नाम दसना है, किहड़ी एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ एनीमल हसबेंडरी, डेयरिंग एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बिल्कुल राइट आंसर होएगा। मैं थोड़ी हेल्प कर देना, मैं तुहानूं आंसर इहदा दसदा आ। अगला क्वेश्चन है, SFDA यानी आपां इहनूं स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी कहांगे। दोस्तों इहदा एस्टैबलिशमेंट की स्थापना की गई है, किहदे रिकमेंडेशनस ऑफ विच कमेटी, किहड़ी कमेटी ने रिकमेंड कीता सीगा, फिर इहदी स्थापना की गई है, तो इहदी स्थापना है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी ने की सी। तो देखो सच्चर कमेटी तो तुहानूं पता होएगा ना, जिस दे बेस ते साडे पंजाब सूबे हरियाणे सूबे की जो भाषा के आधार पर होया सीगा, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूजा आ, दूजा आंसर होएगा। ठीक है, ये मैं तुहानूं दसना चाहांगा 1969 1969 की गल है, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी बनी सी, जिहदे हैड सीगे बी, उन्हां दा नाम सीगा वेंकटापाय, वो हैड सीगे। इन्हां ने रिकमेंड किया सीगा कि इस एजेंसी नूं बनाया जाए, जिस करके कि रूरल क्षेत्रों के अंदर जिन्नी भी क्रेडिट रिव्यू दिता जाए और किसानों नूं वध तों वध लाभ दिते जाण, किसानों नूं फायदा दिता जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश 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 इज द स्टडी ऑफ पैरियोडिक प्लांट एंड एनीमल लाइफ साइकिल नूं की कहा जाता है। दोस्तों इनू कहते फैनोलॉजी की कहांगे, अपन फैनोलॉजी कहांगे। ठीक है दोस्त, की आंसर है तक फैनोलॉजी। फैनोलॉजी की है, फैनोलॉजी की स्टडी ऑफ पैरियोडिक
ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰ ਐਨੂਅਲ ਜੋ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਨੋਲੋਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। PWP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? PWP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ। याद रखना है परमानेंट वैल्टिंग पॉइंट है, या आप इनू वैल्टिंग पॉइंट WP भी कह सकते हैं। ये डिफाइन किया गया एज द जो मिनीमल्स पॉइंट होंगे ने सॉइल मॉइस्चर दे, ठीक है, द प्लांट रिक्वायर्ड नॉट और वेल्ट, सो दैट कि साढ़े वास्ते ईजी होएगा। दोस्तों अज दे सैशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे, ठीक है, मैं तुहाडे नाल साझे कीते है। मैनूं पूर्ण उम्मीद है तुहानूं पूरे क्वेश्चन समझ आ गए होणगे। बाय द वे 140 क्वेश्चन हो चुके हैं जिन्हां दे विच मैं तुहानूं वक्खरे वक्खरे सीरीज़ के मुताबिक करवा रहा। इस तो होर भी मैं सीरीज़ करवा चुके हैं, कुछ डिटेल वाइज करावांगा। जिवें कि तुहानूं पहलां मैं दस्सिया सीगा कि फिजिकली सेहत ठीक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी तुहानूं पढ़ाउणा आ, तो तुहाडे तो मैनूं इंस्पिरेशन मिलदा है। तुसीं भी इंस्पिरेशन सोचिया करो कि साडा टीचर अगर सानूं इन्नी मेहनत करके टीच कर रहे हैं तो दैन वी शुड ग्रैब, सानूं सीखना चाहिए है, होर भी मेहनत करनी चाहिए है। इदां ही धमाकेदार सैशन तुहाडे तक लैके आवांगे। तद तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।